कर दी। हेलो अजय सर। आपकी आवाज नहीं जा रही है सर। वॉइस आ रही है आपकी। सर कंट्रोल आप करेंगे? आपका माइक खराब है। नो प्रॉब्लम सर, मैं कॉल कर लूँ आपको। कंट्रोल आपके हाथ में दे दे। श्रुति आ गई, शायद आप ही को दे दिया कंट्रोल। कोई नहीं, नॉट एन इशू। Good morning, sir. हाँ आ रही है सर। ठीक सर, मैं ये कह रहा था कि कंट्रोल आपके If other faculty members have joined, I welcome them. Two of my young entrepreneur of my institution, my alumni, Mr. Bilal and Mr. Prateek. I welcome both of you, and I hope you will share your experience, which is beyond the classroom. How the real world you are going to face. Bilal, are you there? Hello, yes sir, I'm there. Okay, morning. Morning sir. Mr. Prateek. Okay, no problem. Good morning sir. Good morning. So this is in fact one of the platform we have provided, because events बहुत सारे कराते हैं, तो स्टूडेंट्स को कभी कभी लगता है कि स्पीकर्स बहुत हाई फाई होते हैं, आइडियोलॉजीज बहुत हाई फाई होती हैं, अपील नहीं करती वो चीजें उनको। तो इस बार हमने इन्हीं में से, मतलब स्टूडेंट ग्रुप में से ही हमने दो लोगों को चूज किया, एंड I hope you will share your valuable inputs and experience. What I can say, ki journey to become an entrepreneur. My dear good friends, before taking to the final note, how you can choose entrepreneurship as a career, today's resource person will certainly discuss. Another point which I would like to share regarding this College of Computing Sciences and Information Technology, TMU, that CCSIT is the 17th ranked institution in Northern Zone. उत्तर भारत में हमारी 17वीं रैंक है इनोवेशन रेटिंग रैंकिंग में, which clearly states that our students, our faculty members are really aligned with the Ministry of Education, and we are on to the right track. And this is reflected once our three team have reached to the final of Smart India Hackathon 2020. During the COVID pandemic, the competition was organized in virtual mode, and three teams have reached to the pinnacle final, and two teams have won this prestigious award. One team led by Puspen Chaudhary and other team members, and supervised by
Mr. Pandey and Mr. Rupal Gupta, Mr. Rupal Gupta and Mr. Ashish Bishnoi, and another team led by Arjav Jain and other Aman Agrawal and Nancy Jain, and supervised by me and Mr. Pandey. So this is another achievement. Another point, highest rating of Ministry of Education to rate the governance and the academic progression is 5-star rating. And in 5-star rating, CCSIT have gained the 4-star rating provided by the Ministry of Education. So these all are government rating and rankings we have, which is a clear indication that institution is moving ahead. My dear young budding engineers, researchers, and professionals, thank you for joining. In fact, I saw that more than 100 participants have participated. Over the last few years, we are actively engaged with the young talent from various, what I can say, campuses and interaction among other institutions. So working with fresh and young talent from close quarters, right from the selection process, training, facilitating, and this corporate acclimatization, and then launching them into the projects, we saw that pattern are emerging very precisely. We are working very hard for our project. Then there is a certain difference when you are a student and when you are passed out and you are facing the real world. So I am just sharing the experience of campus life and industry life, or our entrepreneurial lifestyle. In campus, study is individual based, basically. However, once you are joining the industry, that is team based. You are becoming an entrepreneur, you need a team. Earlier, once you are the student, you are self-planned. However, once you are outside of the campus, you are on to the job, maybe entrepreneur, then you need a project planning. Smaller things you have to take care during your planning. Usually, जब हम student होते हैं, then we do last minute preparation. अरे यार अभी तो बहुत टाइम लगा, पड़ा हुआ है, देख लेंगे, अभी रखो. We do last minute preparation. However, once you become entrepreneur, you become industrialist, you become a good engineer, you need a day-to-day work discipline. Once you are the student, perhaps you are knowing the answer which is available onto the books or through internet. However, once you are facing the real world, perhaps solution is not known to you. All right. Usually, our habit to remember the answer once you are a student. So this needs a transformation from remember the answer to arrive an answer. ठीक है? आंसर को याद रखना और आंसर तक पहुंचना. These are the two different dynamics. Once you are a student, your approach is marks based. However, if I see the another side after a student, then this needs a transformation from marks based to productivity based. Once you are a student, you are evaluated by someone else. However, once you are not the student you are facing, then you start self-evaluation. So these are the transformation needed once you'd like to become a successful entrepreneur or successful industrialist, successful software engineer, or any other profession you want to
excel. Then you need a transformation from canteen behavior to corporate etiquettes. And you are driven by the prescribed syllabus. However, once you are passed out, then you have to transform yourself from prescribed syllabus to each day activity which is unique, and this needs a creation. You have to transform yourself from understanding theory to activity-based learning. I think these are the points which I thought for today's program are the essential one. I hope I set the roadmap for Bilal and Prateek, and I advise both of them that they will do justice with all the participants who is attending the session online. And I am really thankful to Ashish and RP Pandey. These two young faculty members are really doing good, especially in terms of innovation, student connect. So my best wishes to the organizing team. Dr. Rajiv Kumar is also one of the important member of this team, who is associate professor in CCSIT and program coordinator of IBM. So these three organizing team members are the leading faculty members of the CCSIT. I hope with their inclusion, with their guidelines, will certainly get something useful and meaningful as well. Thank you very much. This is all from my side. Thank you, sir. Thank you, sir, for your precious words and guidance. There is nothing more beautiful than someone who goes out of their way to make life beautiful for others. Now, I would like to request Mr. Syed Mohammed Bilal, sir, to come forward and share his experience with all of us. Hello. Hi. This is Bilal. This is Syed Mohammed Bilal Reis, and thank you for letting me in this video conferencing. So मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने 2011 में एज अ स्टूडेंट ज्वाइन किया था TMU को, जब मैंने BC ज्वाइन किया था इसमें. So थैंक्स टू इसमें thanks to Rakesh sir and Rajiv sir and Pandey sir, so that उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है यहाँ पर इस जर्नी में मेरी. एंड नॉर्मली देखा जाए तो मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट था. जैसे मैंने 2011 में आया था, कॉलेज ज्वाइन किया था. सो आई वाज एवरेज स्टूडेंट एंड मैं स्टडी इतना नहीं कर. Realme की वॉच मंगाई, Realme 3. Bilal? जी सर. Actually, you are the host, so mute to all participants. Okay. Right, and okay. So मैं ये बता रहा था. हाँ. So मैंने 2011 से ये जर्नी अपनी स्टार्ट करी थी. एज अ BC में मैंने अपना एडमिशन लिया था. ओके. सो फाइनली ठीक हो गया अब. सो मैंने यहाँ पर BCA में जैसे मैंने एडमिशन लिया था, सो तब मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करूँगा. बट मेरा कुछ इसमें था नहीं कि मुझे कंपनी स्टार्ट करनी या फिर कुछ अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना है. बट मैंने जस्ट ऐसे एडमिशन लिया था बिकॉज आई लव टू डू प्रोग्रामिंग. सो उसमें मैंने एडमिशन लिया, देन पढ़ाई करी. देन मुझे सर मिले, राजीव सर मिले, सो दैट अभी तक हम साथ में रहते हैं. सो राजीव सर की गाइडेंस एंड राजकेश सर की गाइडेंस, इट वाज वेरी हेल्पफुल. फिर देन मैंने 2014 में जैसे ही BC कंप्लीट किया, देन मुझे MCA करना था. फिर मुझे MCA के लिए मैंने UPTU गया. काफ़ी ऑफर्स आए मुझे नोएडा एंड दिल्ली के कॉलेज से.
बट फिर राजीव सर एंड मनीष सर जो है हमारे, उन्होंने थोड़ा समझाया कि यू हैव दैट स्किल कि आप कोई भी कॉलेज में जाओ बट आप कर सकते हो। तो मैंने फिर राजीव सर और मनीष सर ने जब मुझे इतना इंसिस्ट किया एंड काफी होप दिखाई मेरे अंदर, सो मैंने फिर एमसीए भी कंटिन्यू किया 2014 से टीएमयू के साथ। फिर 2000 जब 16 और 15 में मैंने एमसीए कर रहे थे हम सब, तो मैंने एज अ फ्रीलांस स्टार्ट कर दिया था, वर्क एज अ फ्रीलांसर। सो काफी मैं प्रोजेक्ट्स करता था उस टाइम, लाइक काफी लंदन के प्रोजेक्ट्स थे मेरे पास उस टाइम एज अ फ्रीलांसर, एंड और भी काफी प्रोजेक्ट्स थे। तो फिर तब से मेरी ये थिंकिंग स्टार्ट हुई कि यार मैं जब मैं इतना कुछ खुद ही कर सकता हूँ, तो आई एम कैपेबल ऑफ स्टार्टिंग अ स्टार्टअप एंड स्टार्टिंग अ कंपनी। सो फिर 2016 में जैसे ही कंप्लीट हुआ एमसीए एंड मेरा इंटर्नशिप दिल्ली में चल रहा था, लक्ष्मी नगर में। सो मैंने वही सोचा कि अब मुझे इंटर्नशिप के बाद कुछ स्टार्ट करना है अपना। सो वहाँ से मेरी प्लानिंग स्टार्ट हुई विद माय एल्डर ब्रदर्स who were engineers। सो उनके साथ मेरी प्लानिंग स्टार्ट हुई। देन उन्होंने सब कुछ किया, मेरे दोनों भाइयों ने, एल्डर ब्रदर एंड वन ऑफ माय कलीग आल्सो। सो दे आर डूइंग देयर वर्क एंड आई स्टार्टेड रिसर्च थिंग्स कि मुझे कैसे करना है, कैसे प्लान करना है, कैसे प्रोजेक्ट्स लाने हैं, कैसे प्रोजेक्ट्स को डेडलाइन में कन्वर्ट करना है। सो फिर ये हुआ। फिर 2016 के जून में मैंने स्टार्ट कर दिया ये कंपनी एज अ साइबर क्रिएटिव के नेम से, जो अब फिलहाल दो जगह है यहाँ पर, नोएडा में सेक्टर 63 में एंड मुरादाबाद में भी। आप मुरादाबाद में एमडी कॉलोनी है यहाँ पर। सो इस जर्नी में काफी अप्स भी आए, डाउन्स भी आए, एंड काफी चीजें देखने को मिली, काफी चीजें रिसर्च करने को मिली कि हमें क्या एज अ स्टूडेंट क्या फेस करते हैं, और जब हम कंपनी स्टार्ट करते हैं क्या फेस करते हैं, एंड जब जॉब करते हैं तो क्या फेस करते हैं। सो वही सब मैंने फेस किया। एंड इसमें सबसे अच्छी बात क्या रही कि लर्निंग प्रोसेस जो होता है स्टार्टअप में, लर्निंग प्रोसेस बहुत अच्छा होता है कि आप सीखते हो कि आप, मतलब आपको सीखने को काफी मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आते हैं एंड काफी आपको सीखने को मिलता है। एंड आप काफी कुछ, जो क्लाइंट्स नए नए होते हैं वो आपको चीजें सिखाते भी हैं कि आपको अगर ये चीज टेक्नोलॉजी आती नहीं है, देन वो आपको सिखाते हैं कि ये चीज करो, और वो भी कुछ अपना इनपुट्स देते हैं। सो ये सब चीज मेरी जर्नी थी। एंड फिर अब 2007 से 2017 से जो स्टार्ट मैंने किया, एंड काफ़ी स्टूडेंट्स जो आए टीएमयू से भी थे, इंटर्नशिप की थी जिन्होंने टीएमयू के थे। एंड जॉब में मेरे एक ग्राफिक डिज़ाइनर थी, वो भी टीएमयू की थी, उसका नाम याद नहीं मुझे। सो काफ़ी जर्नी थी। मैं एक आपको प्रेजेंटेशन और दिखाता हूँ। So you can see the screen. Hello. Yes, sir. Yes. Okay. Yes, sir. So okay, thank you guys. So this is my company name, Cyber Creativo. ठीक है. So I've gave the subtitle of it, show them what you made of, like show them what you can do. So I'm dealing in three things. Web में हम deal करते हैं, like web development, digital marketing, and now we are focusing on cloud servers and cloud management, जो हमारा 2017 और 18 के बीच स्टार्ट हुआ है। सो साइबर क्रिएटिव जो एक नेम है, ये नाम ही एक थोड़ा अलग है। साइबेक जो था एक मतलब इसका कोई मतलब नहीं है साइबेक का, बिकॉज जो मैंने सोचा था, एक सोच रखा था मैंने एक बचपन से कि एक मतलब इमेजिनेशन नाम है बेसिकली ये। और क्रिएटिव वो जो इसका मतलब है बेसिकली क्रिएटिव जो होता है, एंड स्पेनिश में अगर हम उसे कन्वर्ट करें तो क्रिएटिव वो कहते हैं स्पेनिश में। सो दैट्स द नेम साइबर क्रिएटिव। एंड हम इसमें हम जो डेवलपमेंट एंड सर्विसेज इसमें प्रोवाइड करते हैं बेसिकली, जैसे हम जो यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी, वो पीएचपी की यूज़ करते हैं, जिसमें हम पीएचपी के फ्रेमवर्क्स यूज़ करते हैं, लाइक लारावेल, वर्डप्रेस हो गया, कोडिंगनाइटर हो गया। एंड
since 2018 and 19 we are working on Python also and AWS servers. So अभी जो PHP का मार्केट है बिकॉज इट्स वेरी डाउन, सो हमने सोचा था कि हम कुछ नया करते हैं बिकॉज अगर नया नहीं करेंगे तो मार्केट में कोई नहीं रह पाएगा. सो इसलिए हमने फिर AWS पे स्विच किया एंड पाइथन पे स्विच किया, एंड नाउ वी आर वर्किंग ऑन दिस in both of this, and we are achieving and getting many clients for AWS. एंड ट्रेनिंग की बात करें, बेसिकली हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते थे स्टार्टिंग से. जब हमने स्टार्ट की थी 2016 से तो नहीं देते थे, बट 17 से हमने स्टार्ट करी कि हम ट्रेनिंग भी देनी है एंड इंटर्नशिप भी देनी है. सो उस टाइम काफ़ी डेवलपमेंट का भी फेज स्टार्टिंग था बिकॉज हमने कंपनी जस्ट स्टार्ट करी थी एंड फ्रेमवर्क भी था. मतलब डेवलप कंपनी का फेज स्टार्टिंग था, सो हमें डेवलपमेंट भी था एंड ट्रेनिंग और इंटर्नशिप भी हमने सोचा था. तो काफ़ी हमने इंटर्नशिप प्रोवाइड करी, लाइक अलीगढ़ में प्रोवाइड करी, अलीगढ़ के कॉलेजेस में एंड मुरादाबाद के कॉलेजेस में, एंड TMU के स्टूडेंट्स काफ़ी आए थे मेरे पास. सो यहाँ पर प्रोवाइड करी. फिर देन हमें लगा कि नहीं यार ये काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है, ट्रेनिंग काफ़ी टाइम टेकन होता है बट एंड हेक्टिक ज़्यादा होता है, और हमें डेवलपमेंट जो हम डेवलपमेंट करते हैं उससे थोड़ा इफेक्ट करने लगा. तो हमने थोड़ी सी कम कर दी है ट्रेनिंग. मतलब अब इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं ओनली, बट ट्रेनिंग हम इतनी नहीं प्रोवाइड करते. सो बेसिकली हम 4 चीज़ों पे प्रोवाइड करते हैं ट्रेनिंग, लाइक PHP हो गया, फ्रेमवर्क, PHP के फ्रेमवर्क हो गया, डिजिटल मार्केटिंग जो आजकल काफ़ी बूम पे चल रहा है, डिजिटल मार्केटिंग, SEO एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग, इस पे भी हम प्रोवाइड करते हैं. एंड थर्ड थिंग इज क्रॉलिंग एंड स्क्रैपिंग फ्रॉम पाइथन. सो क्रॉलिंग एंड स्क्रैपिंग में ये होता है बेसिकली, जैसे दूसरी वेबसाइट्स होती हैं, दूसरी वेबसाइट से हम डेटा जितना भी होता है वो हम अपने पास स्क्रैच करते हैं, स्क्रैप करते हैं. एंड क्रॉलिंग का ये मतलब जितने भी लिंक्स होते हैं वो हम क्रॉल कर लेते हैं, देन उसकी स्क्रैपिंग करते हैं. पाइथन के थ्रू करते हैं, PHP के थ्रू भी कर सकते हैं, बट पाइथन के थ्रू ज़्यादातर मोस्टली करते हैं, एंड क्लाइंट जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं. सो मैंने बताया था आपको कि 2 माय ब्रदर्स आल्सो जॉइंड एंड स्टार्टेड दिस कंपनी विद मी. सो उनका रोल जो था, उनका ट्रेनिंग में काफ़ी बड़ा रोल था बिकॉज दे प्रोवाइड 6 सिग्मा ट्रेनिंग, 6 सिग्मा ग्रीन बेल्ट एंड 6 सिग्मा ब्लैक बेल्ट. Basically I don't know much about it, but this is also very good certification for engineers and also computer engineers also. So मैं अभी क्लाइंट की बात करता हूँ. अभी फिलहाल जो हम क्लाइंट्स में डील करते हैं, हम लाइक लंदन के काफ़ी क्लाइंट्स में डील करते हैं, जो CRM सॉफ्टवेयर्स काफ़ी हम डेवलप करते हैं. USA के क्लाइंट्स जो हैं, ऑस्ट्रेलिया एंड UAE के जो क्लाइंट्स हैं, उनमें मोस्टली हम जो वर्क करते हैं CRM सॉफ्टवेयर्स होते हैं. CRM सॉफ्टवेयर लाइक जैसे होता है, जैसे आप यूज़ करते हो CRM, अपना डेटाबेस आपका कोई है अभी, ERP मैनेजमेंट. सो अभी हम ERP पे वर्क करते हैं एंड ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा वर्क करते हैं विद द हेल्प ऑफ PHP एंड सर्वर जो हम यूज़ करते हैं AWS का करते हैं. सो ये हमारी पूरी कंपनी की मतलब प्रोफाइल थी, एंड हम यहाँ पर वर्क करते हैं ये, एंड इस जगह हमारे क्लाइंट्स हैं USA, UK. सो मतलब बता दूं आपको, अगर आपको कहीं भी अपना, अभी तो आप स्टूडेंट है, देन आपको फ्यूचर में चूज करना पड़ेगा कि वेयर वी शुड गो, कि हमें कहाँ पर जाना है. सो अभी आपका एम बेसिकली होना चाहिए कि जो भी आप चूज करो, लाइक इट इज स्टार्टेड द बेसिक, मतलब बेसिक से स्टार्ट होना है आपको, बेस से स्टार्ट होना है, एंड आपको उसकी पूरी नॉलेज लेनी है. इवन इट इज PHP एंड एनी टेक्नोलॉजी और एनीथिंग, बी इट एनीथिंग, लाइक आपको डिजिटल मार्केटिंग में मूव करना है, या फिर आपको कहीं भी मूव करना है, कोई सी भी टेक्नोलॉजी में, लाइक क्लाउड में मूव करना है, आपको एंड्रॉयड में मूव करना है. सो अभी तो काफ़ी चीज़ें आ गई हैं एंड्रॉयड और iOS की भी, आपको iOS में मूव करना है. iOS काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है. सो आपको जितनी भी जैसे नॉलेज है वो पूरी होनी चाहिए किसी भी एरिया की. आप कहीं भी जाते हो, कोई भी टेक्नोलॉजी आप चूज करते हो, सो यू शुड हैव फुल नॉलेज अबाउट इट. एंड अगर आपको नॉलेज नहीं है, देन यू नीड टू लर्न अबाउट इट, कि आपको
सीखना अच्छा आना चाहिए कि आप अगर गूगल है, यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं, या फिर आपको कोई मेंटर है जो आपको सिखाता है, सो आपको सीखना अच्छा आना चाहिए सो दैट आप उसे जल्दी सीख पाओ एंड जल्दी एग्जीक्यूट कर पाओ। एंड अभी जैसे हमारे कॉलेज की बात करें, टीएमयू की कॉलेज की बात करें, सो फैकल्टी आपको पता ही होगी कितनी सपोर्टिव होती है कि अगर अभी भी अगर हम बात करें आफ्टर 10 इयर्स, अभी राजीव सर, आशीष सर या फिर राकेश सर से जब भी मैं मिलता हूँ, सो दे आर स्टिल द सेम विद मी कि जैसे हम पहले थे कि लाइक एज अ बिग ब्रदर दे आर विद मी। सो तब भी वैसे ही साथ थे, अब भी वैसे ही साथ हैं। बस आपके साथ, इवन आपके साथ और प्लस पॉइंट है बिकॉज़ यू हैव दैट थिंग्स ऑन इंटरनेट कि आप कुछ भी सर्च कर सकते हो इंटरनेट पे कि अगर मुझे ये पढ़ना है या फिर मुझे कुछ और पढ़ना है, एंड्रॉयड में जाना है, सॉफ्टवेयर्स में जाना है, लैंग्वेजेस में जाना है, किसी भी चीज़ में जाना है। एंड आपके लिए गाइडेंस आपके फैकल्टी भी है क्योंकि फैकल्टी अब काफ़ी फ्रेंडली हो गए हैं। अकॉर्डिंग टू अस जब हम यहाँ पर स्टूडेंट्स थे तो इतने मतलब फ्रेंडली तो थे बट इतने नहीं थे जब इस टाइम जितना हो गए एंड इस टाइम जितना आपको हर चीज़ से सपोर्टिव कर सकते हैं। सो दिस इज़ माय जर्नी अबाउट कंपनी एंड थिंग्स एंड क्या मैं करता हूँ। एंड आपको अगर किसी चीज़ के बारे में पूछना है तो आप पूछ सकते हो मुझसे, लाइक अगर आपको कोई क्वेश्चन है, डाउट है कि लाइक विच टेक्नोलॉजी अबाउट कि कौन सी टेक्नोलॉजी के बारे में क्वेश्चन पूछना है या फिर क्या पूछना है मेरी कंपनी के बारे में। एंड फिलहाल अभी हम जो वर्क कर रहे हैं बेसिकली हम फ्रीलांसर्स पे वर्क कर रहे हैं बिकॉज वर्क फ्रॉम होम चल रहा है हमारा सिंस 1 ईयर। सो अभी तभी चल रहा है, अभी सारे लोग घर पे काम कर रहे हैं एंड आपको पता होगा आप भी 1 साल से कॉन्फ्रेंस के अलावा कुछ कर भी नहीं रहे होगे। सो यही सब था एंड दैट्स ऑल अबाउट माय कंपनी एंड दैट्स ऑल अबाउट मी। सो इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क। Excuse me, sir. या So we have a query session after the next speaker. ओके So ओके we ओके will have a particular session for this. ओके श्योर श्योर श्योर। सो देन वी मूव टू द एंड। ओके सो दैट्स ऑल। मैं आपको ऑफिसेज है या आपको ऑफिसेज, आपको अगर ऑफिस आना है देन अगर आपको कुछ भी पूछना है या फिर आपको लाइक एनी स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट टीएमयू को मेरे पास आता है या फिर कुछ भी पूछता है देन आई ऑलवेज बी देयर फॉर देम। अगर आपको टेक्नोलॉजी के बारे में पूछना है, लाइक आपको अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में कुछ करना है, डिस्कस करना है, लाइक आपको कुछ भी जॉब के बारे में कुछ पूछना है या फिर आपकी कोई क्वेरी है रिलेटेड टू एनी टेक्नोलॉजी, सो यू कैन कम एनी टाइम या फिर आपके फैकल्टी आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो काफ़ी कनेक्टेड रहता हूँ मैं टीएमयू के स्टूडेंट से एंड टीएमयू के स्टूडेंट भी काफ़ी कनेक्टेड रहते हैं बिकॉज अभी तक टीएमयू ऐसा मतलब ऐसा कॉलेज है जो काफ़ी साथ देता है स्टूडेंट्स का भी और स्टूडेंट्स भी काफ़ी कनेक्टेड रहते हैं। जैसे आप लोग भी अगर टीएमयू छोड़ के जाते हो देन उसके बाद यू विल बी कनेक्ट विद देम एंड यू लव टू कनेक्ट विद देम बेसिकली। सो इसलिए आई थिंक कि आपको अगर कहीं भी जाना है या फिर कोई भी सेक्टर चूज करना है, ये कौन से ईयर के हैं स्टूडेंट्स? हेलो। सर एमसीए फर्स्ट ईयर ओके एमसी फर्स्ट ईयर, सो ओके और मिक्स है सर। ओके 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 थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो दैट इज गुड कि आप एमसीए फर्स्ट ईयर में है एंड बीसीए में है। सो अगर आप एमसीए अभी करते हैं देन आप अभी से ही स्टार्ट कर दो कि लाइक नेक्स्ट ईयर में क्या करना है बिकॉज एमसीए फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर पता नहीं लगता कि कब खत्म हो जाता है हमारा। सो जब तक आपका सेकेंड ईयर आएगा तब तक आप मतलब सोच भी नहीं पाओगे कि क्या करना है। सो अकॉर्डिंग टू मी आप अभी से सोच के रखो कि लाइक वेयर वी डू गो एंड क्या हम कर सकते हैं, क्या हमें करना है, कहाँ पर कौन से सेक्टर में कौन सी टेक्नोलॉजी में जाना है एंड इफ यू वांना स्टार्ट एन any business or some kind of a startup then you should start think about it right now from here. So that's it from my side. I'm Syed Bilal. Okay, thank you. Thank you so much, sir. Your words were very much motivating. You motivated us that nothing is impossible, sorry. Nothing is impossible. Everything is possible for everyone. Thank you so much, sir, for your words. Thank you.
It's not hard to make decisions when you know what your values are. With these words, I would like to call up Mr. Pratik Pandey sir to share his experience with us. Hello. Are you getting my voice? Yes, sir, you are clear. Okay, good afternoon. Sorry. Good morning to all. Good morning, sir. I would like to thank Professor Rakesh sir, Dr. Rajiv sir. I would like to thank Dr. Rajiv sir, Professor Rakesh sir, Rajendra sir, and Ashish Bisnu sir to giving me this golden opportunity to introduce my company in front of you and the journey behind this company. मैं बोर नहीं करना चाहूंगा. बेसिकली मैं बताना चाहूंगा कि कंपनी स्टार्ट किए वो मुझे ज्यादा टाइम हुआ नहीं, तो इतनी एक्सपीरियंस अभी तक मैंने गेन नहीं करी कि मैं एकदम बिलाल सर की तरह आपको हर एक चीज को एक्सप्लेन कर सकता हूँ. लेकिन हाँ, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैं कितनी प्रॉब्लम फेस किया हूँ अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश करने से पहले. सबसे पहला प्रॉब्लम जो आज के डेट में एंटरप्रेन्योर्स के पास ये आता है कि आप एंटरप्रेन्योर में क्यों जाना चाहते हैं. कोई मकसद, आपके एंटरप्रेन्योरशिप के पीछे कोई मकसद है या नहीं है. आप डायरेक्टली मतलब बस चार दोस्त मिले, चारों ने मिलकर बोला हाँ भाई मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है, मेरे को अपनी कंपनी खोलनी है, तो इस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप कभी भी नहीं होता. बेसिकली मैं एग्जांपल देना चाहूंगा. जैसे मान लीजिए कि मुझे अपने हेयर ग्रो करने हैं, ठीक है. अगर मैं स्कूल में होता तो मुझे क्या करना पड़ता है. स्कूल में अलाउड नहीं है, कॉलेज में अलाउड नहीं है, फैमिली अलाउड नहीं करेगी. फिर भी आप क्या करते हो, आपके अंदर एक जिद होती है ना कि हाँ मैं अपने बाल को बड़ा करना चाहता हूँ. तो आप सबसे लड़ते हो, हर चीज को फेस करते हो, हर प्रॉब्लम को फेस करते हो. उसके बाद जब आपका बाल ग्रो करता है तब आपको वो खुशी मिलती है. वही चीज है अपनी कंपनी को स्टार्ट करने में. सेम चीज जब मैंने बीटेक अपना कंप्लीट किया तो मेरे दिमाग में प्लान थे. मैंने बहुत लोग के साथ प्लान शेयर किया, बहुत लोग ने अपने आइडियाज मेरे साथ शेयर किए. लेकिन जब बात आती है फंडिंग की तो उस टाइम पे बहुत लोग पीछे हट जाते हैं. फिर अगर आप सोचते हो कि आप फंडिंग कहाँ से लेके आओगे, फंडिंग इज द बिगेस्ट फैक्टर बिकम यू टू एंटरप्रेन्योर. तो फंडिंग की प्रॉब्लम्स जो है ना वो कभी भी सॉल्व बहुत आसानी से नहीं होती है. सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये आज के डेट का एंटरप्रेन्योरशिप में. तो फंडिंग के लिए आप क्या ही कर सकते हो. आपके पास सबसे पहला ऑप्शन ये है, या तो आप पहले अपने पॉकेट से लगाओ जो भी आपकी सेविंग्स है, क्योंकि आप फैमिली पे अगर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते तो फिर आपकी सेविंग्स ही आपको वो फंड करा सकती है. तो मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आप आगे इन फ्यूचर में कभी भी एंटरप्रेन्योरशिप करने के बारे में सोच रहे हो, अगर आप अपनी खुद की कंपनी खोलना चाहते हो, तो आप पहले एकदम से किसी भी चीज के बारे में अगर आप ओपन करना चाहते हो उसकी तह तक स्टडी कर लेना. कोई भी चीज हो, जैसे अगर आपको कोई भी चीज से रिलेटेड अगर जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, हाइप और व्हाट्सएप दोनों ही आपको पता है ना मैसेंजर है, राइट. तो आज के डेट में हाइप शट डाउन हो गया है लेकिन व्हाट्सएप चल रहा है. क्यों? क्योंकि उसने पता है हर एक चीज को धीरे धीरे करके इम्प्लीमेंट किया था. धैर्य था उसके पास सबसे बड़ा था कि उसने पेशेंस से हर एक चीज को इम्प्लीमेंट किया. और हाइप ने ये चीज गलती करी थी कि उसने एक टाइम पे ही इतने सारे अपडेट्स दे दिए थे कि उसकी चीज को लोग पसंद नहीं करते थे. लोगों को सिंपल चीज पहले पसंद आती है, फिर सिंपल से वो धीरे धीरे करके हर एक चीज से इंट्रोड्यूस कराते गए. और आज आप जानते हैं कि व्हाट्सएप कितना सक्सेस है और हाइप डाउन हो चुका है, शट डाउन हो चुका है, अब तो प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल नहीं है. मैं अपना पीपीटी शेयर करता हूँ आप लोग के साथ. बेसिकली मेरी कंपनी का नाम वर्लपुल टेक प्राइवेट लिमिटेड है. सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है. कंपनी जो है इसमें कुछ भी नहीं है. ज्यादा से ज्यादा हम क्या करते हैं, वेबसाइट डेवलप करते हैं, राइट. और फिर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का हो गया हो, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का हो गया हो, वेबसाइट बिल्डिंग का हो गया हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया हो, या फिर सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन हो गया हो. ERP बेस्ड क्लाउड सिस्टम जैसे प्रोवाइड करते हैं स्कूल्स के लिए. इंटीग्रेशन करते हैं एडसेंस एंड एडमोक का. अगर आप ज्यादा स्टार्टअप करना चाहते हैं और आपके पास नहीं है इन सब चीजों का प्रोवाइड, तो हम आपको उस पर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है.
फिर आपके एप्लीकेशन को पब्लिश करते हैं, SSL प्रोवाइड करते हैं हम, फिर कंटेंट राइटिंग भी करते हैं। अगर आपकी वेबसाइट में कंटेंट राइटिंग की भी नीड है तो कंटेंट राइटिंग भी हम आपके वेबसाइट के लिए करते हैं। आप सभी के पास एंड्रॉइड है, आप एक बार एंड्रॉइड एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा और ये 2 एप्लीकेशन हैं जो डेवलप किए हुए हैं मेरे कंपनी के द्वारा और अभी करेंटली प्ले स्टोर पे लाइव है। और एक का तो 1K प्लस अप्रॉक्स 2K प्लस डाउनलोड्स हैं। सर किसी की आवाज डिस्टर्ब कर रही है बीच में। Pipasenia sir, your mic is on. Pipasenia sir. Ashish ji, please call Pipasenia sir. Prateek, wait for a minute, huh? Yes, sure sir. जी सर। सब पिपसेनिया सर का माइक ऑन है, उनको बोल दीजिए आप फोन करके। ठीक है सर, मैं म्यूट कर रहा हूँ, मैं सर को म्यूट कर रहा हूँ। या प्रतीक, यू कैन स्टार्ट। हाँ sure. तो ये 2 एप्लीकेशन है, आप गूगल प्ले स्टोर पे, मैं आपको अभी दिखाता भी हूँ कि गूगल प्ले स्टोर पे मेरे एप्लीकेशन हैं। मेरी स्क्रीन विजिबल है, आपको शो कर रहा है स्क्रीन? यस सर। राइट, मैंने देखा आपने, मैंने वो कैल लिखा, उसमें ही मेरा 3rd नंबर पे सजेशन आने लगा गो कैलकुलेटर का। और ये वो एप्लीकेशन है जो मैंने डेवलप करा हुआ है ऑलरेडी, और ये अभी प्ले स्टोर पे लाइव भी है और इसके डाउनलोड्स भी हैं। आप एक बार जाना और गो थ्रू करना है, आपको भी एप्लीकेशन कैसा लगा एक बार जरूर इस पर रिव्यू करना। राइट, इसके बाद फिर मेरी वेबसाइट जो है वो अभी करेंटली विक्स सॉफ्टवेयर का यूज करके मैंने बनाया था, क्योंकि एक स्टार्टअप कंपनी है और इस टाइम पे फंडिंग की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। तो मैंने एकदम से लो अमाउंट से स्टार्ट किया था, तो इसके चलते मैंने विक्स प्लेटफॉर्म का यूज किया, क्योंकि इस पे होस्टिंग बहुत ही चीप रेट में मिल रही थी मेरे को एक सिंगल वेबसाइट को होस्ट करने के लिए। बाकी जो हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है, हम उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसकी होस्टिंग और ये सारा चीज चार्ज करते हैं और उसके पर्सनल ईमेल से ही सारा कुछ उसको प्रोवाइड करके कर देते हैं। जैसे अब बेसिकली आज सुबह ही मेरे पास एक क्वेश्चन आया था। राइट, क्वेश्चन ये आया था कि आप तो खुद विक्स की वेबसाइट यूज कर रहे हैं और क्लाउड पे कैसे आप मुझे सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। मुझे उसका क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा था। मैंने उस टाइम पे रिप्लाई उसको इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं उस टाइम पे मीटिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। तो इस क्वेश्चन का ना बेसिकली आप में से ही किसी का क्वेश्चन होगा। राइट, तो मैं उस क्वेश्चन का जवाब भी अभी दे देता हूँ आपको कि अगर मैं अभी राइट नाउ, अभी मेरी कंपनी एक स्टार्टअप पे है, सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ रही है, और मैं अगर इस टाइम पे क्लाउड के सर्वर्स खरीद लूँ, लाइनेक्स के सर्वर खरीद लूँ या होस्टिंग के लिए किसी भी तरह का सर्वर खरीद लेता हूँ, राइट नाउ मैं इन चीजों पे पैसे इसलिए इन्वेस्ट नहीं कर रहा क्योंकि अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ और अगर मुझे बिजनेस नहीं मिलता है तो मेरे सारे पैसे जो है वेस्ट हो जाएंगे। तो मैं वेट करता हूँ क्लाइंट की, अगर क्लाइंट को जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है मैं डायरेक्टली उस चीज को उस हिसाब से परचेज करके वहां पे उसको इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। अब मान लीजिए मैंने होस्टिंगर से क्लाउड की होस्टिंग ले ली, ठीक है, या फिर किसी और गूगल की ले ली, और लेकिन जो क्लाइंट है वो बोल रहा है नहीं भैया मेरे को तो अमेजॉन की ही वेब सर्विसेज चाहिए, मुझे क्लाउड पे गूगल की क्लाउड सर्विसेज नहीं चाहिए। तो फिर मेरे पास जो गूगल की बिजनेस क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करने के सिस्टम्स होंगे वो मैं यूज किस लिए करूंगा, कहाँ करूंगा फिर तो क्लाइंट को, क्योंकि दूसरी रिक्वायरमेंट है, तो फिर मेरा तो बिजनेस लॉस में जाएगा। इन सब चीज को ना स्टडी करना बहुत जरूरी है। राइट नाउ मैं अभी भी जॉब ही कर रहा हूँ क्योंकि मुझे फंडिंग की नीड है, तो मैं जॉब करता हूँ, साइड टाइम पे अपनी कंपनी को भी बिल्डअप कर रहा हूँ। और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के ग्रुप है जो बेसिकली हम फ्रीलांसिंग जब करते थे तो उस टाइम पे हमारी ग्रुप थी, तो आज भी जो हम काम चाहते हैं वो हम आपस में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट मेरा काम हुआ, मैनेज करना मेरा काम होता है, बाकी जो दूसरे लोग होते हैं वो अपना अपना काम सब पे डिवाइड हो जाता है और वो सारे लोग काम करते हैं अपना। That's all from my side. Thank you so much, sir.
really you was saying the real world thing. You was showing real things which we need to know, that out of these studies we have to face these real world and realities. So thank you so much. Thanks, Shruti. Queries? Anyone wants to ask anything to our entrepreneurs can ask one by raising their hand on their side, and we will call their name. Uh, okay, we have Alok Sagar. Please unmute yourself. ओके सर, सो गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा नाम आलोक सागर है और मैं बीटेक फाइनल ईयर से हूँ सर, आई नर्चर से। सर मेरा क्वेश्चन बिलाल सर से, जैसे कि ऑलरेडी बिलाल सर ने मेंशन किया था कि उनकी कंपनी क्लाउड बेस पे काम करे जो कि AWS पे है। तो सर मेरा बैकग्राउंड भी, जो हमारा कोर्स है वो भी क्लाउड टेक्नोलॉजी स्पेशलाइजेशन से है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है। हम हमारे पास बहुत सारे मार्केट में ऑलरेडी काफी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जैसे AWS है, Azure है, लेकिन मेरा सर क्वेश्चन ये है, एज ए स्टूडेंट हमें एक अच्छा कैरियर बनाने के लिए मतलब बेसिक किस क्लाउड को लेकर स्टार्ट करनी चाहिए और क्या एक रोड मैप होना चाहिए एक अच्छे लेवल पर हमें पहुंचने के लिए सर, क्लाउड टेक्नोलॉजी में अपना कैरियर बनाने के लिए। सो दैट इज माय क्वेश्चन। सो व्हाट इज द रोड मैप फॉर? हेलो, हाय आलोक। सो बेसिकली अगर आपको अगर आपको क्लाउड टेक्नोलॉजीज में एंटर करना है तो क्लाउड के इवन काफ़ी कंपनीज ने स्टार्ट कर दिया। अब तो अमेजोन है, आपका गूगल क्लाउड भी है एंड एज़्योर भी है। सो सबसे पहले तो आपको अगर एज ए स्टूडेंट देखना है तो आप ये देखोगे कि आपके पास बिकॉज बजट नहीं होता है। सो सबसे पहले हम एज ए स्टूडेंट हम चाहते हैं कि हमें जो भी चीज़ R&D करनी होती है तो हम सोचते हैं कि हमें फ्री मिले बेसिकली। सो अगर आप अमेजोन के साथ जाते हो, सो अगर अमेजोन पे नहीं भी जाते हो, सो आप पहले ये देखो कि मुझे विंडोज सर्वर में जाना है या फिर लाइनक्स सर्वर में जाना है। सो पहले आप अपना जो बेस आपको रेडी करना है, आप लाइनक्स पे अपना कमांड बेस्ड कमांड लाइन जो आपका है वो आप अच्छे से रीड करो, रिसर्च करो कि मुझे लाइनक्स में क्या क्या आता है, नहीं आता है तो मुझे क्या क्या करना है लाइनक्स में। देन आप अमेजोन पे मूव कर सकते हो। अगर एज ए स्टूडेंट भी अगर आप अकाउंट बनाते हो तो एज अ फ्री आप उसे यूज कर सकते हो। एज्योर भी आपको, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर भी फ्री प्रोवाइड करता है। सो पहले आप अपने लाइनक्स पे ध्यान दो, लाइक जो भी आपको सर्वर जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप सर्वर्स पे आपको चलाना है, लाइक विंडोज पे वर्क करना है आपको या फिर लाइनक्स पे करना है। फिर आपकी काफ़ी चीज़ें आप गूगल पे सर्च कर सकते हो कि आपका सबनेट मास्क क्या होता है, आपका आईपी क्या होता है, आईपीवी क्या होता है। पहले ये चीज़ आप रिसर्च करो, देन उसके बाद आप प्रैक्टिकल पे मूव करो। तो प्रैक्टिकल के लिए आपका अमेजोन पे आप जा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आप वहाँ पर काफ़ी अच्छे से आप सीख सकते हो, बट उससे पहले आपको क्या है, आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि क्लाउड में हम क्या क्या कर सकते हैं, सर्वर क्या होता है, व्हाट इज सर्वर बेसिकली। एंड देखा जाए तो क्लाउड एंड फिजिकल सर्वर में कुछ डिफरेंस नहीं होता। फिजिकल बस हमारे पास एक मशीन होती है एंड क्लाउड में जो होता है वो क्लाउड बेस्ड होता है पूरा। सो उसमें आप अगर ये है, अगर आप अकॉर्डिंग टू मी अगर आप जा रहे हो तो सबसे पहले आप अपना बेस रेडी करो, रिसर्च करो कि मुझे कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाना है, देन उसे थोड़ा लर्न करो, देन उसके बाद आप सर्वर पे जाओ, अमेजोन के साथ जा सकते हो आप। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। I hope your query is clear, Alok. या मैम। Okay. Anyone else wants to ask something? Okay, we have Harshit Sethi. Please unmute yourself. Good morning, sir. Morning. So I am currently pursuing my third year in BBA brand management Okay. from TMU. तो सर मेरे को ये जानना था, आपने बताया था डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप के बारे में। तो सर मेरे को अपना जो करियर है परस्यू करना है डिजिटल मार्केटिंग में ही। तो सर उसके बारे में थोड़ी मेरे को नॉलेज चाहिए सर। ओके। सो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग अगर आप कहें तो आजकल काफ़ी बूम पे है ये।
काफी बूम पे प्लेटफॉर्म चल रहा है। डिजिटल मार्केटिंग सब पहले क्या होता था, पहले CS वाले करते थे, काफी कंप्यूटर साइंस वाले करते थे। अब कोई भी कर लेता है डिजिटल मार्केटिंग, कोई भी कोर्सेज कर लेता है, एंड काफी इजी भी है, ट्रिकी भी है, एंड काफी एस्थेटिकली बेस्ड है। सो आपको डिजिटल मार्केटिंग में सबसे पहले आप देखो कि आप कहाँ जाना चाहते हो, क्योंकि ये काफी बड़ा एरिया डिजिटल मार्केटिंग में, जिसमें आप SEO आता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो गूगल के थ्रू हम सर्च करते हैं। सेकंड में आपको ये आता है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, कि आपको सोशल में जाना है या फिर जाना है। फिर ईमेल मार्केटिंग भी आता है, एंड मैनी अदर थिंग ऑल्सो। सो सबसे पहले आप ये देखो कि आपको जाना कहाँ पर है डिजिटल मार्केटिंग में, कि डिजिटल मार्केटिंग भी एक पूरा बहुत बड़ा एरिया है, कि उसके अंदर आपको कहाँ जाना है, कि SEO पे जाना है, सोशल मीडिया मार्केटिंग पे जाना है, ईमेल मार्केटिंग पे जाना है। तो उसको आप रीड करो, एंड काफी आपको ब्लॉग्स मिल जाएंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग के, तो कि आपको SMM के लिए, SEO के लिए आपको काफी ब्लॉग्स मिल जाएंगे, कि कैसे चीज हम रीड करते हैं, कैसे हम साइट को टॉप पे लाते हैं, कैसे हम साइट को रैंक कराते हैं। सो उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि ये चीज करते क्या है, कि SEO कैसे वर्क करता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे वर्क करता है। सो पहले आप वो रीड करो, उसको पढ़ो, समझो, एंड ये तो आप कैसे भी ट्राई कर सकते हो। आप अपनी एक वेबसाइट बना लो छोटी सी, या फिर कोई सी भी एक वेबसाइट बना लो, उसका आप SEO करो, SMO करो, एंड स्टार्ट कर दो। आप कैसे भी कर सकते हैं इसमें। इवन आपको ज्यादा चीजें, रिसोर्सेज भी नहीं चाहिए आपको, रिसोर्सेज बस आपकी डीप लर्निंग चाहिए इसमें आपको डिजिटल मार्केटिंग। थैंक यू सर। सर मेरे पास पेज है इंस्टाग्राम पे, मैं करता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग। मेरे पे पेज है outlet_on IG करके, जिसमें मैं अपना बिजनेस रन कर रहा हूँ इस टाइम। उसके मेरे पे फॉलोअर्स भी हैं, 3 लाख अब फॉलोअर्स हैं। तो सर SMM में थोड़ी नॉलेज है और मैं ले रहा हूँ। और मेरी वेबसाइट भी है www.myshopmatic.com। ओके, ग्रेट। तो सर मतलब इंटर्नशिप मुझे करनी है, क्योंकि अपना करियर मेरा लास्ट ईयर है, खत्म होने वाला है। ओके ओके ओके। सो आप इंटर्नशिप के लिए बेसिकली एक मेल डाल सकते हो, या फिर मुझे कांटेक्ट कर लेना आफ्टर दिस मीटिंग। सो मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि आप कैसे करोगे, कहाँ करोगे, एंड मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। Thank you so much, sir. So, do we have any other question? Anyone else wants to ask? To Bilal, sir, or There's a Prateek, sir? message. There's a message in chat. I have a question. Yeah. Sorry, Yes, email. Manju? I have a question from email marketing. So when Mhm. we are doing an email marketing, Mhm. then we have to use an email ID for the client. But Mhm. what that I am doing a project on data marketing only. Mhm. When I'm just inputting their email ID, it's always showing that it something went wrong. 404 error is occurring at that time. Which time? Hello. Hello. Yes, sir. So when you got error, which time? What, sir? At the time of, you said no, you got 404 error. So I'm just asking which time you got that error. Yes, sir. I didn't understand. Sir, at when Yeah. at the time of sending message. Okay, 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 okay. During the time of sales funnel, when we are creating the sales funnel through email, right? Okay, okay, okay. So actually I don't know much about email marketing actually. So I'm a developer, but I'll answer your query after this meeting. Okay, after I'm asking, and I'll I'll send your query to my email marketer so that he'll answer your query. Thank you. Anyone else for the query? Hello Shruti, there's a query in chat box actually. You can read it out. I request all the students to kindly speak on this platform. Don't go for the chat box. Kindly come forward with your queries on this platform. You're very free with these entrepreneurs.
to ask your questions. Anyone wants to ask? So if you are comfortable, then you can reply on the chat box also. No, I'm just read that question. So it's a Mansi Sehgal, VC second year student. I want to set up my own IT company. Can you guide that? How can I do that? Okay, so अगर आपको IT company setup करनी है, so basically आपको ये choose करना है कि there are two things कि एक service based company होती है and second is product based company. So पहले आपको ये choose करना है कि आप service based company में जाते हो या फिर product based company. एंड इसमें डिफरेंस होता है सर्विस बेस्ड कंपनी में, लाइक हमारे पास क्लाइंट्स होते हैं कि कोई हमारा क्लाइंट आया हमारे पास कि हमसे कहता है एक सॉफ्टवेयर चाहिए मुझे या एक वेबसाइट चाहिए या एंड्रॉयड ऐप चाहिए, वो आया एंड हमने उसकी वेबसाइट बनाई या जो भी कोई सर्विस दी एंड फिर उसका हम मेंटेनेंस करते हैं, दैट इज कॉल्ड वेब सर्विस कंपनी. एंड सेकेंड इज प्रोडक्ट. प्रोडक्ट में क्या होता है, खुद का अपना प्रोडक्ट होता है, जैसे हम पेटीएम की बात करें या फिर किसी भी दूसरी ऐप की बात करें, फेसबुक की बात करें, सो इट इज़ अ प्रोडक्ट. सो आपको ये पहले पता करना है कि आपको प्रोडक्ट कंपनी स्टार्ट करनी है या सर्विस सेंटर स्टार्ट करनी. देन आप उसी हिसाब से अपना पिच करोगे. आपको अगर प्रोडक्ट है तो आप उसके लिए आप इन्वेस्टर ढूंढोगे कि आपको कोई इन्वेस्ट करे प्रोडक्ट्स. आप एक प्रोडक्ट रेडी करो 3-4 महीने में जो भी आप रेडी करते हो, देन उसके बाद आप आइडिया अपने पिच करो. देन उसके आप इन्वेस्टर सर्च करो, काफ़ी इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे आपको. इवन मैं साइट भी बता सकता हूँ, देयर इज अ साइट एंजल इन्वेस्टर आई गेस. सो आप वहाँ से आप अपनी इन्वेस्टर सर्च कर सकते हो, अपना आइडिया पिच कर सकते हो कि आपका क्या स्टार्टअप आइडिया है. एंड अगर आपको वेब सर्विस स्टार्ट करनी है तो वेब सर्विसेज कंपनी में क्या होता है, बेसिकली आपको डेवलपर चाहिए होता है एक, एंड आपको एक बीडी चाहिए होता है जिसे कहते हैं बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव. सो वो आपका बिजनेस ला के देता है कहीं से भी, लाइक मेलिंग के थ्रू, कॉलिंग के थ्रू या लाइक सेल्स. सो आपको सबसे पहले ये सोचो, देन आप स्टार्ट करो. एंड इफ यू आर विलिंग टू स्टार्ट देन यू शुड स्टार्ट. एंड बट थोड़ा सा यूनिक होगा, देन इट वुड बी बेटर आई गेस. थैंक यू. Okay, anyone else for the query? There's another question in chat box. Sir, can you please tell me how can I make website visible in my Android? Okay. सो आपको वेबसाइट अगर विजिबल करनी है एंड्रॉयड में, सो एंड्रॉयड में एक ऑप्शन होता है वेब व्यू का. आप वेब व्यू एक एलिमेंट होता है, वेब व्यू में आप उसका यूआरएल अपनी वेबसाइट का सेट कर दो तो आपकी जो वेबसाइट है वो आपके एंड्रॉयड ऐप में शो होने लगेगी. बट इट इज जस्ट लाइक वेब व्यू वेबसाइट. सो एनी अदर? I request all the participants feel free to ask questions. Kindly ask your questions and queries to sir. Okay, sir, I think everyone is clear with their queries. Okay. I request all the students within a few seconds, we will have a link through which you can generate your e-certificate after entering your details. So please kindly fill that form because by filling this form, you can't get your certificate. Gratitude is not in the words, but in the heart which expresses it. With these words, I would like to request Ashish Vishnoi sir to give a vote of thanks to our entrepreneurs. In place of Ashish sir, Pandey sir wants give their feedback, vote of thanks. So I request you, Pandey sir, please say something. Thank you, sir. Thank you, Shruti. So I think this is one of the wonderful session to give the clear-cut guidance about entrepreneurship and clear the doubts of students about successful business.
So I will proud of my these students, Mr. Bilal and Mr. Pratik Pandey, who has set up one of the good industry, and that is a budding industry, and that motivate our students that be always become a job creator, always become a job creator. हमेशा जॉब क्रिएटर बनिए, कोशिश यही करिए कि जॉब क्रिएटर ही बनिए, जॉब के पीछे मत भागिए. So about these words again, I would like to thank our principal sir, जो हमेशा ये मोटिवेट करते हैं कि we will give students something new. हमें स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ नई जानकारी देनी है, कुछ ना कुछ नई चीज देनी है जो उनके लिए यूजफुल हो. Thank you, Principal sir. Thank you, Mr. Bilal and Mr. Pratik Pandey. Thank you, sir. And thank you, Hello? Ashish. Thank you, Ashish sir. Thank you, Dr. Rajiv. Yeah, Shruti. Shruti, you want to ask anything? Hello, Shruti. No, sir. It's अच्छा. Purnima, sir. Yeah, Purnima. Yeah, Purnima. आपको अभी आपको कुछ कहना है पूर्णिमा? Yes, sir. Good afternoon. या पूर्णिमा. सर ई सर्टिफिकेट जो हम लिंक आपने शेयर करी है उस पर क्लिक करें तो उसमें सेक्शन पूछ रहा है सर. सेक्शन एमसी में सर कोई सेक्शन नहीं है, एक साथ ही है. आप उसमें कुछ भी सेलेक्ट कर लो. हम एमसीए के केस में ना जो भी ये भी आप सेलेक्ट करना सेलेक्ट कर लो. एमसीए के केस में हम उससे बाद में रिकॉर्ड में उसे नल कर देंगे. ओके ओके सर, थैंक यू. ओके ओके, बाय बाय. थैंक यू ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच. ओके, बाय बाय. Thank you, sir. Regarding certificate, I want to share something. If there is any section required, please mention a section A. So after filling your form, then you will get the certificate. So don't worry. If there is any error, any problem, you can contact with me, Ashish sir, and Pandey sir. Right? So you can ask any query regarding this. Now, thank you, sir. Shruti, Yes, sir. please end the session. Okay, sir. I would like to give a thanks to some Bilal sir and Pratik sir for coming, for joining us and for guiding us with their experiences. Thank you so much, sir, for joining us. I hope you have a Thanks, great time Pratik. with us. Okay, by this, I Thank think we you. should wrap up. Thank you so much for joining the session. Thank you so much all of you, sir and Shruti. Thank you so much. You can leave the meeting.